So in previous lecture, what are topics that we have covered? Anybody? Hello, am I audible? So strings पढ़ा था. Yes sir. Yes. स्ट्रिंग स्टार्ट किया था हमने और स्ट्रिंग में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि हाउ टू ट्रैवर्स योर Indexing of स्ट्रिंग, strings. यस, इंडेक्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ टू ट्रैवर्स दैट स्पेसिफिक स्ट्रिंग. देन नेक्स्ट टॉपिक that we covered, Concatenation of yes, two strings. concatenation of two strings, then appending the given string, and then multiplying operator with respect to given string, and string immutability. So what is anybody can tell me what string immutability? Strings are immutable. What is the meaning of this? Unchanged. Yes, once you have created your string, that string cannot be changed. Okay, so strings are immutable. उसके regarding एक example देखा था, but we will see one example with respect to ID of that what that specific memory location के हिसाब से एक example देखेंगे. Can we start? Yes or no? Yes, sir. Okay, so I will take one string S1. And message is there in that string, and I will print the address of that string, or also string also S1, and then print ID of S1. Okay. Then I will take another string S2 is equal to again I will take perform this operation, that is S2, and then ID of S2. Okay. Now what I will do here, see, S1 plus equal to S2, and then print S1, and then print ID of S1, and then next thing I will do what, S3 is equal to S1, and then again print S3. Can anybody tell me what I have done here? Hello? Read the code, anybody? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So can anybody tell what is actually I have done right here with respect to string immutability? क्या किया मैंने यहाँ पे? I have taken two strings S1 and S2. First of all, what I have done, I have print that S1 and ID of S1. Then what I have done, I have created second string S2 and then print S2 also and ID of S2. And in that third after S2, what I have done, S1 plus equal to S2. What is the meaning of this? Can anybody? S1 plus is equal to S2. What is the meaning of this? S1 is equal to S1 S2. both the strings are. Yes, we have done the concatenation of S1 and S2, but that concatenation again we have stored in what? S1 में store किया. So here S1 equal to S1 plus S2. Okay, then print S1 and print ID of S1, and S3 is equal to S1 and print S3 and then ID of. Now tell me, this statement and this statement, whether we are getting same address. This first print ID S1 and this second print ID S1, whether we are getting the same ID. Anybody? Can we get same ID for first test? No, No, that sir. is correct answer. Yes. So we will run it and see the output. Getting? Am I clear? As Yes, per sir. our problems, as per our Yes, concept sir. that is given by Python, strings are immutable. Okay.
तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका मेमोरी लोकेशन चेंज है। S1 का हमने S1 में स्टोर किया, बट द मेमोरी लोकेशन इज चेंज। देखो हेलो वर्ल्ड का मेमोरी लोकेशन क्या है, लास्ट में देखो 8960। और वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, और एक चीज की है, S1 को S3 को असाइन किया, तो उसकी वजह से क्या हो गई, S3 का भी एड्रेस सेम एज पर दैट ऑफ S1, एंड हेलो वर्ल्ड विल बी स्टोर्ड इन दैट स्पेसिफिक S3। एम आई क्लियर? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. So from Yes, this sir. also we will get the idea of that strings are immutable. Okay. So see here, I will write one comment. As strings are immutable, so memory location of S1 get changed. Okay. Am I clear? और एक तो आपको ऑब्वियसली पहले बताया था मैंने, सिंपल वाला जो था कि हमने डायरेक्टली क्या किया था यहाँ पे, जैसे कि S1 इन ब्रैकेट, इससे तो डायरेक्टली पता चल रहा है हमें कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मेमोरी लोकेशन से भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल F, whether this is work, this will work? No. Yes, as strings are immutable. This cannot be work, so it will give you error regarding assignment. Okay, str object does not support an item assignment regarding strings are immutable। यहाँ पे डायरेक्टली एरर ही वहां पे उसको उन्होंने दिखाया आपको। Am I clear? Yes or no? Yes, sir. So this is all about strings are immutable and strings regarding strings immutability. Okay. Now next one, string formatting operator. So इस टाइप का एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल आपको एग्जाम में हो सकता है, and what is the correct output for this example? That can be a question and some options are there, so you have to choose a correct option like this। यहाँ पे जैसे प्रीवियसली जो हमने रन करके देखा था रिगार्डिंग दिस, so जो भी आपका आंसर है वो आपको प्रॉपरली वहां पे मेंशन करना है। Am I clear? Yes or no? Regarding string immutable, am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट थिंग स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग ऑपरेटर। अभी देखो दोज यू लर्न द सी प्रोग्रामिंग, आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए होंगे, ऐसा कुछ तो किया होगा। फॉर एग्जांपल अभी क्या करता हूँ, आई विल राइट वन स्टेटमेंट, जिनको पता है इस लोगों को पता होगा समझो। ऐसा कुछ तो आपने किया होगा ना। हेलो, those who have learned that specific C programming, whether you have done this or not regarding scanf statement? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और उसके बाद प्रिंट, Yes, sir. यस, प्रिंटफ स्टेटमेंट में भी आपने ऐसा किया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, a is %d एंड देन कॉमा करके आपने क्या किया होगा, यहाँ पे a लिखा रहेगा, ऐसा किया रहेगा ना। एम आई क्लियर? ऐसा नो? यस। सो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर, जनरली पाइथन में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर इंडिकेट करने की जरूरत होती नहीं है, नो नीड टू मेंशन द फॉर्मेट स्पेसिफायर, बट स्टिल यू कैन राइट दैट यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर आल्सो। उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, हाउ टू राइट दैट फॉर्मेट स्पेसिफायर विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन प्रोग्राम। देखा, तो यहाँ पे देखो स्कैनएफ में लिखा है मैंने %d एंड %f एंड कॉमा करके %a एंड %b। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? आप स्कैनएफ फंक्शन से क्या करेंगे, इनपुट देने वाले, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक अनम्यूट किया है, म्यूट करो। अनम्यूट योरसेल्फ। किसका है वो?
ओके सो यहाँ पे देखो मैंने परसेंट डी परसेंट, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस परसेंट डी एंड परसेंट एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी और एनी प्रोग्राम? परसेंट डी मीन्स व्हाट? इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर. ओके, I will write here percent d is the format specifier for integer. मतलब इंटीजर इंडिकेट करने के लिए परसेंट डी होता है, और ए का फॉर्मेट ए इज ऑफ द डेटा टाइप इंटीजर, वो इंडिकेट करने के लिए परसेंट डी हम यहाँ पे सी में लिखते हैं. उसके बाद परसेंट एफ इज फॉर फ्लोटिंग नंबर्स, सो दैट इज बी इज नथिंग बट फ्लोटिंग, एंड एम्परसेंट मीन एड्रेस ऑफ ए एंड एम्परसेंट बी एड्रेस ऑफ बी. जो भी आप वैल्यू यूजर से देने वाले, दैट वैल्यू विल बी stored at address of A and address of B. With respect to C programming यहाँ पे बता रहा हूँ मैं. I will make a comment here and I will explain with respect to Python. Okay. So यहाँ पे आपको एक syntax बताता हूँ. Syntax for format. So this syntax can be asked in your exam. Specifier. See the syntax. फॉर्मेट, जो भी आपका फॉर्मेट है दैट यू हैव टू राइट. उसके बाद आपको क्या करना है? परसेंटेज सिंबल यूज करना है, एंड इन दैट ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन व्हाट? वैल्यूज. जो भी वैल्यूज है दैट यू हैव टू मेंशन. ओके, so this is a syntax or format. So I will directly give you one example regarding this. But as I already told you, there is no need to mention the format specifier or not. It is optional part in Python. Okay. So see, I will do one thing. Age is equal to 32. Now see the statement. What I am writing here. Normal statement कैसे लिखते थे? Print name और print age करने के लिए directly you are writing print age and print name. So with respect to this format specifier, what I will write here? See here. Name equal to, now tell me, as name is a string, so format specifier for a string is %s. All of you note down these all things because that can be asked in your exam. And then next thing I will write, age is equal to age क्या है अभी यहाँ पे? Which data type is there for age? Hello? Integer. Integer. So what I have to write here? Percent D. D. Percent D or percent I. Yes, you can write percent I also. Then next, as per our format, percentage symbol you have to give, and then you have to write the parameter or that variable that you have mentioned for that, name comma age. So tell me, so name is equal to क्या display होगा अभी? What is the output? परसेंट एस की जगह पे क्या डिस्प्ले होगा इन योर आउटपुट? अमूल. यस, एंड एज इज इक्वल टू क्या डिस्प्ले होगा परसेंटेज की जगह पे? यस, 32. यस, परफेक्ट. गेटिंग? एम आई क्लियर? फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज करने हैं, बट आपको जनरली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर आवर रूल्स और दैट पाइथन के जो भी रूल्स उन्होंने बताए. नो नीड टू मेंशन द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर दैट स्पेसिफिक वेरिएबल व्हाइल यू आर प्रिंटिंग दैट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक वेरिएबल. बट ये आपको कंपलसरी कहाँ पे यूज करना पड़ता है? सी प्रोग्रामिंग में आपको कंपलसरी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने ही पड़ते. If you are not using the format specifier, you are not getting that compiler doesn't understand what type of data you are taking as an input. That can be integer, that can be float, or that can be string. Okay. Now another thing I will do here, I will write here print. यही यहाँ पे कॉपी करता हूँ. Another way of displaying that specific values of that age and name. Now tell me the answer. Tell me the answer for second statement.
हेलो, आंसर मतलब सर आउटपुट ना. यस आउटपुट यस. नेम अनिल नेम, एंड यस. तो यहाँ एज पे हमने क्या किया, 34. इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट पासिंग द वैल्यू पैरामीटर्स दैट इज वेरिएबल नेम, वी आर डायरेक्टली पासिंग द values for that specific name and age. So you'll get the output Anil and 34. See the output. Anil is not defined. Okay. Yes, define नहीं, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, डबल कोट नहीं दिया है because it is string. Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. So all of you note down this syntax that can be asked in your exam. What is the syntax for formats string formatting operator? So this is a syntax. डबल कोट में आपको क्या करना है, दिस थिंग यू हैव टू राइट, दैट इज फॉर्मेट जो भी आपका है, फॉर एग्जांपल नेम एंड उसके साथ आपका उसका फॉर्मेट स्पेस है. उसके बाद डबल कोट कंप्लीट करने के बाद आपको परसेंट सिंबल देना है. ब्रैकेट में आपको वैल्यूज, मतलब ये भी हो सकता है या डायरेक्टली वेरिएबल नेम भी हो सकता है, और वेरिएबल नेम के ऊपर जो भी वैल्यू असाइन है दैट विल बी डिस्प्ले. एम आई क्लियर? फॉर्मेट स्पेसिफायर, एम आई क्लियर? सर हाँ मग आपण फक्त प्रिंटची लाईन लिहिली तरी डिस्प्ले होईल ना वरती ते नेम आणि एज जर येस हे नाही हा केलं, येस असं नाही केलं. असं म्हणतोय ना तू, आतापर्यंत तेच हा. केलं ना आपण, नेम कॉमा एज ना. येस असंच ना. नाही म्हणजे मग जी प्रिंट आता तुम्ही जी सेकंड घेतली ना एक्झाम्पल अनिल येस आणि 34, ती येस फक्त तेवढी एकच लाईन लिहिली तरी डिस्प्ले होईल ना येस होणार ते वरती. डिस्प्ले. येस हा होणार येस आय विल शो यू. हेच म्हणतोय डायरेक्टली ना, प्रिंट नेम इज इक्वल टू पर्सेंटेज आणि हे ही सेकंड लाईन ना, हा असंच आणि ना. ती येस वरचे पण ते असाइन केले आहेत ना नेम इज इक्वल टू अमोल आणि ते हा जरी नाही टाकले तरी. येस झालं ना. हा आलं का आता? एम आय हो. क्लियर? आता इथे काय केलं आपण, नो व्हेरिएबल, वी आर नॉट टेकिंग एनी व्हेरिएबल्स. We are directly passing the value in print statement and mentioning the format specifier. Am I clear? हो Am I सर. clear? Yes. आणि इथे काय केलं होतं आपण, we are taking the two variables and that two variables are passing as a values for this percentage in bracket values. यहाँ पे जो mention किया मैंने likewise. Am I clear? Yes or no? येस सर. Yes. So this is all about the string formatting operator, and in that directly question will be asked for ऐसा भी program दिया जाएगा आपको, and what is the output for this code that will be asked. Am I clear? Yes or no? So यहाँ पे मैंने 32.5 किया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? If I have changed age as a 32.5, what is the change that we have to do? Float. Yes, float. So percent F. Getting? Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. So this is all about the string formatting operator. तो एक तो सिंटैक्स पूछा जाएगा या दो लाइन का, ये जो आपको मैंने कोड अभी बताया, इस टाइप का एक कोड आपको दिया जाएगा, एंड व्हाट इज आउटपुट फॉर दिस कोड दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. एम आई क्लियर? यस और नो? यस और नो? अरे बोलत जा रहे हो बा. येस सर. यस. बिल्ट इन, नेक्स्ट थिंग, बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स एंड फंक्शन. Now this is very important with respect to your exam point of view, because definitely 2 or 3 questions will be there on string inbuilt methods and functions. So built-in string methods and function, what is the meaning of this? First, built-in string methods and function, what is the meaning of this? Predefined meaning होगा. Yes. Some of the predefined functions and methods are given for string that can be directly used, and you'll get the output for that specific function that you want as per your requirement. Okay. So I will start with first function, capitalize function. Okay. So directly write the code for that. I will write the code. I will take one string s1 equal to double quote hello. All of you note down this. Actually ये book में भी सारी चीजें दी है. You can go through the book also.
with meaning and one example. One table is given. If you see the Rima Thareja string chapter 249 number page, 249, 250, 251, 252, 53. Total 5 pages are there, and on that 5 pages, one table is given, each and every page. In that function name, usage of that function, and example. Likewise, all the function meaning is given. So you can refer that from that book also. I will take all this function here also with example. So I will write one function, capitalize, and I will do the comment for that. Comment में आपको उसका meaning दिखाता हूँ. I will write. So capitalize से क्या होता है? First character of the string. Yes. First char will be changed to capital. See the output. Getting? Am I clear? Yes, sir. All of you getting the meaning of capitalize function? और कैपिटलाइज और टाइटल फंक्शन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर. अभी यहाँ पे उसके नीचे में क्या करता हूँ, डायरेक्टली टाइटल का भी यहाँ पे आई विल डू द एग्जांपल ऑफ टाइटल. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. देखो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, all of you wrote down these all the functions and revise at your side, so that can be asked, because that can be asked in your exam. अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. What is the output you are getting? टाइटल. Yes, टाइटल मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ईच एंड एवरी जो सेंटेंस का वर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे, कैपिटल. ओके, सेंटेंस की रिगार्डिंग जो भी है, अभी यहाँ पे मैं कैपिटलाइज यूज करूंगा तो क्या होगा, इन दिस केस आल्सो इफ यू आर यूजिंग द कैपिटलाइज. For S2 also. So what will happen? Tell me the answer. Output क्या होगा? So पहला T लेटर capital होगा. Yes. Only T will be capital. Getting? Am I clear? Yes, sir. Capitalize और टाइटल में डिफरेंस समझ में आया सबको? Because ये कंफ्यूजन होता है जनरली एग्जाम में. So you have to be careful regarding these two functions, capitalize and title function. Okay. So title क्या कर रहा है? Title function. Tell me. Change first character of each word of sentence capital. Am I clear? Yes, sir. Okay, so we will move forward. प्रिंट ओके, वही कहते हैं, वही सेम एग्जांपल लेते हैं S2 वाला. इन ब्रैकेट S2 डॉट नेक्स्ट फंक्शन swap case. Some of those functions have a meaning in its that name itself. Now tell me what will happen. Swap case. सर लोअर केस हायर केस हो जाएगा. Yes, perfect. Getting? Am I clear? Yes. So यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अभी now tell me the answer. What will be the output? स्मॉल लेटर्स हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल लेटर्स. Yes, perfect. Your first three words will be
अपर केस एंड दैट लास्ट वर्ड इज स्वैप केस। मतलब क्या है? लोअर केस का अपर केस का लोअर केस। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ओके, सो इसके रिगार्डिंग और दो फंक्शन है जिसमें अभी स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, लोअर एंड अपर करेंगे। सो आई विल राइट कमेंट कन्वर्ट अपर टू लोअर and vice versa. Am I clear? Yes, Am I sir. clear? Okay. Yes, sir. Yes. Okay. We will move forward. I will take another string and double quote print in bracket s3 dot lower and इसके साथ और एक लेता हूं, ये डायरेक्टली ऐसे 2 लाइन का कोड जाएगा एंड व्हाट इज द आउटपुट दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ओके, see the output. Getting? So specifically आपको अपर में करना है तो you can use upper function, that is lower to upper, and lower upper to lower करना है तो what you have to use? Lower function. Am I clear? Am I clear? So Yes, sir. Yes. It convert upper to lower, and what it will in here what will happen? It convert lower to upper. Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now next thing. Next function I will take s4 equal to for example I will take one string hello world and print bracket max bracket s4। उसके साथ ही एक और लेता हूं तो दोनों चीजें यहाँ पे करके लेंगे। फिर मिन मैक्स सामने कहाँ पे देखा है फंक्शन? कैन एनीबॉडी? मिन मैक्स फंक्शन कहाँ पे तो देखा है हमने? टेल मी। बिल्ट इन फंक्शन में हाँ, बिल्ट इन मेथड फंक्शन कहाँ पे देखा था, कहाँ पे यूज किया था? लिस्ट। यस यस, लैब असाइनमेंट। हाँ, लैब असाइनमेंट में यूज किया था, बट कंसेप्ट इज व्हाट? लिस्ट। यस, एम आई क्लियर? तो मैक्स क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू विल बी रिटर्न रिगार्डिंग दैट लिस्ट। बट यहाँ पे क्या होगा, मुझे एनीबॉडी कैन एनी आइडिया? यहाँ तो मैंने स्ट्रिंग लिया, वहां पे तो हमने लिस्ट में क्या किया था? हमने नंबर्स लिए थे। सो इन दैट केस इट विल रिटर्न दैट मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक चीज बोलते बोलते फर्स्ट लेक्चर में बताया था रिगार्डिंग दिस कंपैरिजन के वक्त बताया था मैंने। क्या बताया था? कुछ तो याद है होगा किसी को? Now what will be written? Max of S4 and min of S4. Anybody? Max तो वैल्यू रिटर्न करेगा। Yes, perfect. मैक्सिमम एस की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा और मिनिमम एस की वैल्यू यहाँ पे मतलब जिसकी वैल्यू मिनिमम एस की वैल्यू का कैरेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और मैक्सिमम एस की वैल्यू का कैरेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले। पहले क्या करेंगे हम, ये बात का पार्ट कमेंट में डालेंगे, नहीं तो ये पूरा पार्ट फिर से यहाँ पे दिखेगा हमें। सी हियर, सी द आउटपुट। W and print min of S4. Okay. ये पार्ट यहाँ पे मैक्स ऑफ yes I will change the string here नहीं यहाँ पे
हाँ मैक्स में क्या मिला है हमें आंसर? व्हाट इज आंसर आई विल गेट हियर मैक्स? हेलो, W मिला ना यहाँ पे? यस सर। यस, सो व्हाई W? आपके यहाँ पे कमेंट में लिख के देता हूं मैं। हैश एस की वैल्यू मतलब आपको मैंने पहले बताया कि हर एक की के लिए क्या होती है, कीबोर्ड पे जो भी कीज होते हैं हर एक की के लिए एस की वैल्यू असाइन किया जाता है। जैसे कि कैपिटल ए के लिए होता है 65 एंड स्मॉल ए के लिए होता है 97। तो यहाँ पे सारे जो भी हमने जो भी स्ट्रिंग लिया वो दैट इज इन लोअर केस ओनली। ओके, सो लोअर केस में इसकी वजह से क्या है अभी तो क्या कंसिडर होगा, ए की वैल्यू क्या कंसिडर होगी 97। तो 97 से हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिलेगी हमें? फॉर विच कैरेक्टर विल गेट द लार्जेस्ट वैल्यू, एस की वैल्यू? हेलो, यस W। जैसे कि अभी 97 98 इज फॉर बी, 99 फॉर सी, 90 100 फॉर डी। लाइकवाइज जो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी वर्ड चेंज किया, Z किया, तो विल गेट द आंसर Z। Am I clear? Yes or no? Okay, अभी Yes, मीन sir. का आंसर एक बार चेक करेंगे हम। क्यों हो रहा है वो चेंज, देखते। मीन ऑफ S4 ना, यस यस, यहाँ पे उसने क्या किया है, इट विल टेक आल्सो व्हाट कैरेक्टर आल्सो, उसने क्या किया है विच कैरेक्टर, स्पेस का भी उसने कंसिडर Yes. किया है। यस, तो इसलिए वहां पे देखो स्पेस वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस यस हाँ, अभी वो आपको ये करना है चेंज, आई विल शो यू। स्पेस निकालते अभी क्या आना चाहिए आंसर स्पेस निकालने के बाद? ई आना चाहिए। डी आना चाहिए। यस अच्छा हाँ D। यस, डी आना चाहिए। गेटिंग? एम आई क्लियर? यस सर। ओके, एम आई क्लियर? अभी वो एस की sir. वैल्यू, स्पेस का एस की Yes, वैल्यू sir. एज पर दिस, अभी वो सारे एस के हमें याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए की याद रखो, उसके हिसाब से आपको बाकी सारी चीजें आपको याद रखनी, मतलब एक एक ऐड करते जाओ। ऑब्वियसली अभी ए की 97 है तो एबीसीडी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, बी की 98 होनी चाहिए, कैपिटल बी की 66 होनी चाहिए। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, sir. हाँ, और स्पेस की वैल्यू एज पर दिस क्या व्हाट स्मॉल डी के जब भी कम है, इसलिए वहां पे वो प्रीवियसली क्या हुआ था, स्पेस वहां पे डिस्प्ले हुआ था। एम आई क्लियर? मीन के लिए यस और नो? अरे समझ ल का? ओके, आई विल राइट हियर कमेंट, Oh, sir. Yes. इट विल रिटर्न मिनिमम मैक्सिमम मैक्स एस की कैरेक्टर। अभी इसका नहीं कि हम क्या करेंगे, दो फंक्शन है हमें, ORD फंक्शन, CHR फंक्शन। जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा एक्चुअली कैसे होता है। इट विल रिटर्न, जिसमें हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू भी रिटर्न करेंगे। इट विल रिटर्न मीन एस की कैरेक्टर। क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैं आपको वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करता हूँ, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में। इज इट ओके टू कवर दैट टू फंक्शन हियर ओनली, बिकॉज कंसेप्ट यहाँ पे आया हमारा एस्की का। हेलो हेलो, ओके सर। shall we take this concept regarding ASCII value here, two functions that ORD and CHR? Okay, so I will cover those function also here. तो बाद में हमें नहीं देखेंगे वो ORD and CHR function, ORD and इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, CHR function। So what is it? The ORD function return the ASCII code of the given character and CHR function return the character represented by ASCII number। जो आपकी मैंने ऊपर बताया ना 65 is the ASCII value, अभी आपको देखना है कैसे होता है। I will show you how output will be display for that। तो CH is equal to, for example मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन किया, CH is equal to S and I will write print statement। ओके, तो प्रिंट के हिसाब से मैंने क्या किया, ORD फंक्शन की, ORD फंक्शन हमें क्या कह देगा,
ASCII वैल्यू देगा। सी द ASCII वैल्यू दैट विल बी गिवन बाय ORD फंक्शन। मिला हमें यहाँ पे आंसर 83। Yes, sir. यस। अभी 83 कैसे मिला? ट्राई इट फ्रॉम 65। 65 कैपिटल ए की, उसके बाद 66 67 करते जाओ आप, आपको कैपिटल एस के ऊपर कौन सी वैल्यू मिलेगी? 83। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? हाँ सर। यस सर। सो इसके ऑपोजिट आपको करना है, तब ASCII टू आपको कैरेक्टर गेट करना है। तो आई विल शो यू। फॉर एग्जांपल सिंपल स्टार्टिंग का एक कैरेक्टर लेता हूं, तो A B 70 फॉर एग्जांपल। 70 के लिए क्या आता है? F बराबर ना? 65A 66B 67C 68D एंड नहीं 65 66 67 70 बराबर 70 के लिए F आता है, बराबर ना? एस और नो? एस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, सो आई विल डू नाउ वन थिंग, अनदर थिंग। अभी ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में ऐसा पूछा था एक, नॉट टेल मी द आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे बोला क्या था? समझ नहीं का ORD फंक्शन एंड CHR फंक्शन? तुम्हाला आन्सर सांगितलं मी. व्हॉट इज आउटपुट ऑफ सेकंड लाइन? सर सिंपली 70 आएगा ना सर 70 आणि F पण येईल दोन्ही. नाही ओनली 70 येईल. क्या है देखो, क्या बोला? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? जिसने 70 आंसर बताया, द स्टूडेंट दैट कैन एक्सप्लेन दिस. हाँ ये सर, पहले उसको कोई सर उसको पहले लेटर्स में लिया है, फिर से वर्ड्स में कन्वर्ट किया, तो कोई जरूरत ही नहीं, जैसे प्लस माइनस कैंसल आउट होता है ना वैसे होगा वो. हाँ, मतलब क्या है, हमने CHR 70 की वैल्यू हमें मिली, क्या मिली? F, पर वो F को आगे मैंने क्या अप्लाई किया? ORD फंक्शन. मतलब ऐसे हो रहा है वो. आई विल राइट इट इन कमेंट. ORD in bracket CHR. ओके, तो CHR of 70 क्या मिला हमें? What we will get CHR of 70 क्या मिला था हमें? Yes, F. और तो उसकी वैल्यू रिटर्न क्या हुई? F. तो ORD of F क्या मिलेगा हमें? 70. Am I clear? नेस्टेड फंक्शन यहाँ पे यूज किया है, तो ये जनरली क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है ORD फंक्शन और CHR के लिए. एम आई क्लियर? एस और नो? Yes, sir. So you will see the output. Getting? Yes or no? हाँ sir. हाँ. Yes. Yes, So sir. this is all about the ORD function and CHR function. Definitely एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का ही क्वेंटली क्वेश्चन, मतलब 2 बार मैंने एग्जाम देखा है MCQ, तो दोनों बार भी यही क्वेश्चन इस टाइम, मतलब वैल्यू चेंज था, बट इस टाइप क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड रिगार्डिंग ORD एंड CHR. कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है. पहले 1 by 1 आपको अप्लाई करना है. जैसे पहले CHR फंक्शन सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको ORD फंक्शन से सॉल्व करना है. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes sir. हाँ sir. Okay, we will move forward. यही हमें कंपैरिजन पे भी लगने वाला है, ASCII वैल्यू वाला कंसेप्ट, वो बाद में देखेंगे. I will take another string now, S1 equal to, next function we will continue. Print S1 dot
replace in bracket. So can anybody tell me what will happen with respect to this? Most of the functions having meaning in its that name itself. जो भी function का नाम है उसमें उसका meaning है. Past. जितने भी एफ एच ई की जगह पे एफ ओ. Yes, yes. It will replace HE replaced by FO. Yes. Getting? Am I clear? Yes or no? यस सर. Yes. So it replace the old string with new. New मतलब जो भी आपने डाला है वहां पे. तो यहाँ पे this H is old string and FO is the new string. Okay. So all of you clear with this which function, replace function? Am I Yes, clear? sir. Okay. Now we will move forward. S2 equal to double quote. I will take one function, one string. Is AL num. Is AL num. So this function is returns true if string is at least one character and every character is either number or alphabet or false otherwise. Okay. So देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर अभी? Is alpha num. इसको बोलते हैं is alpha num. AL is nothing but alpha and num is for numbers. So what is the output we will get here? Tell me. क्या आउटपुट मिला है यहाँ पे मुझे? फॉल्स. फॉल्स क्यों मिला है यहाँ पे? Why answer get false? वो स्ट्रिंग के टाइप में अल्फाबेट्स. Yes. Now I will show you. Yes. अभी भी false आ रहा है. So print S1 किया आपने. हाँ, yes. या. अभी बताओ. Getting true आ रहा है. अभी उसके बाद. अभी ट्रू आएगा. Yes, I will do one thing. अभी भी ट्रू आ रहा है. क्यों ट्रू आ रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड इंक्लूड किया है. हाँ, यस यस. अभी क्या कर रहा हूं मैं? गेटिंग मतलब एटलीस्ट एक नम भी चाहिए या अल्फाबेट्स या नम, ये स्ट्रिंग चाहिए, इसके कॉम्बिनेशन में स्ट्रिंग चाहिए. एम आई क्लियर? यस और नो? इज अल्फा नम का मीनिंग होता है योर स्ट्रिंग मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट one one in integer or numbers or that specific alphabets. Okay, am I clear? तो अब आपको क्या होगा? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे मैंने आया false? Am I clear? Yes sir. Yes, because यहाँ पे हमने other than alphabets and numbers वहाँ पे as a string ली थी. Am I clear? Yes or no? Yes sir. So it returns, I will write here, और ये आंसर आपको क्या मिलेगा? ट्रू और फॉल्स में मिलेगा. It returns true if at least one character or one number is there in string.
Okay, am I clear? Yes or no? Yes or no? हाँ सर. Yes. Okay. We will move forward. अभी यहाँ पे क्या है? Is alpha AL num दिखा अभी सेपरेटली देखेंगे. Is alpha and is digit. So वहां पे क्या होगा अभी? S1 I will take one example. अब इस केस में क्या करूंगा मैं? प्रिंट इन ब्रैकेट S1 डॉट is alpha. So what is output? True or false? True. True होगा या false होगा? True 0 होगा तो 0 1. Okay हाँ is alpha किया है right. फिर Yes. false होगा. yes false. Getting? Yes or no? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ वो क्या चेक करेगा? Whether your string having alphabets or not. Okay. तो अभी यहाँ पे आपको क्या देगा? वो true देगा. Am I clear? Yes sir. Okay. अभी इसके और एक है इसके साथ. तो यहाँ पे प्योरली बस अल्फाबेट्स ही चाहिए. Yes. यहाँ पे प्योरली अल्फाबेट्स ही चाहिए. Yes, perfect. Okay. तो यहाँ पे I will write a comment. It returns true if alphabets are there in string. दोनों चेक करने हैं तो आपको क्या है? इज AL num है और सिर्फ अल्फा करना है तो आपको क्या है? इज अल्फा है. अभी इज सिंपली आपको नंबर करने दो, उसके लिए डिजिट दिया है S1 डॉट इज डिजिट. इज डिजिट. तो यहां पे अभी क्या होगा? इट रिटर्न्स ट्रू इफ numbers Digits are there. yes numbers are there in string. false देगा. yes यहाँ पे अभी false देगा बिकॉज मैंने अमोल लिया है. am I clear? अभी मैंने उसको चेंज किया. फर्स्ट केस के लिए हमें false मिलेगा, सेकंड केस के लिए क्या मिलेगा? ट्रू. True मिलेगा. यस परफेक्ट. क्लियर है अभी? एनी डाउट रिगार्डिंग? हाँ. सो ये सारे फंक्शन आपको बाय हार्ट करने, बिकॉज दिस इज ऑब्वियस. पहले बताया मैंने कि बहुत से फंक्शन दिए, 30 to 35 फंक्शंस आर देयर. उसमें से एटलीस्ट या 2 या 3 तो आपके एग्जाम में फिक्स होंगे. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. नाउ नेक्स्ट थिंग, S1 इक्वल टू नेक्स्ट फंक्शन. ब्रैकेट S1 डॉट इज लोअर. और बहुत से फंक्शन का मीनिंग क्या है? उस फंक्शन के नेम में उसका मीनिंग है. तो इतना मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे कि क्या होगा मीनिंग, क्या नहीं होगा. अभी यहाँ पे देखो इज लोअर मतलब क्या? वो चेक करेगा वेदर स्ट्रिंग इज लोअर केस और नॉट. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. यस. अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर? ट्रू. यस परफेक्ट. True. गेटिंग? Yes, sir. यस. अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर यहाँ पे चेंज किया, तो व्हाट विल बी आउटपुट? False. False. यस फॉल्स आना False होगा. चाहिए. फॉल्स होगा. क्लियर? अभी यही हम क्या करेंगे? Yes, sir. अपोजिट क्या करेंगे? अपोजिट मतलब क्या करेंगे? अभी इज अपर. व्हाट इज फंक्शन? इज अपर. जैसे लोअर यूज किया था वैसे अपर यूज करेंगे अभी. So we will run this. Getting? False क्यों आ रहा है? Wait 1 minute. Wait. One call is there. हाँ हेलो. Am I audible? हेलो. Yes sir. हाँ
आता इथे बघा इज लोअर अँड इज अप्पर. आता बोथ केस म्हणजे लोअर म्हणजे पूर्ण स्ट्रिंगच लोअर पाहिजे. एम आय क्लियर? यस और नो? एंड अपर मीन्स होल स्ट्रिंग विल बी अपर. ओके, सो यहाँ पे मुझे अभी ट्रू करना चाहिए तो वहां पे पूरा स्ट्रिंग मुझे अपर डालना पड़ेगा. सो विल गेट द आउटपुट ट्रू फॉर अपर. एम आई क्लियर? यस और नो? यस. ओके, so it returns true if alphabets, if all characters are lower. इसके अपोजिट अपर. ओके, क्लियर है? Now next S1 इक्वल टू, ये ऑलरेडी हमने देखा था स्ट्रिंग वाले फंक्शन में. स्ट्रिंग का जो प्रोग्राम असाइनमेंट लिया था हमने. len function. Tell me the answer. 5. Yes, it returns length of the string. Length of string. गेटिंग? तो इसके ऊपर ये भी फंक्शन का क्वेश्चन पूछा था. अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ. नाउ टेल मी द आंसर. 11. 12 is the answer ना? स्पेस पण yes yes yes, space is also considered. yes, actually वो hello में एक l extra हो गया. okay, yes, am I clear? yes or no? Yes sir. okay, so this is the, yes, it returns string length, that is number of characters in the string. So I will write comment also here. And space is also considered as a character. Okay, am I clear? Yes or no? हाँ सर. Yes. Next one. अभी स्पेस चेक करेंगे. ओनली स्पेस के लिए सिर्फ वो स्पेस फंक्शन डायरेक्टली यूज करेंगे. स्ट्रिंग जैसे इज लोअर होता है वैसे ही इज स्पेस होता है. इन ब्रैकेट s1 डॉट इज स्पेस. तो क्या चेक करेगा यहाँ पे, whether that string having space or not. Am I clear? So यहाँ पे क्या आना चाहिए अभी आंसर? डायरेक्टली स्पेस ही दिया मैंने ना. ट्रू आना चाहिए. ट्रू आना चाहिए. और ऐसे दिया तो तब भी ट्रू आएगा, स्पेस है ना. ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? सो स्पेस ओनली स्पेस. स्पेसिफिकली होगा. यस यस, स्पेसिफिकली होगा. यस, सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए. एम आई क्लियर? यस और नो? स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली वाइट स्पेस. ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं इफ स्ट्रिंग कंटेन ओनली वाइट स्पेस, रिटर्न else false. Am I clear? और अगर सर चेक करना हो कि स्ट्रिंग में स्पेस है क्या नहीं तो उसके लिए आपको फिर लूप्स वगैरह डाल के प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा. मतलब फॉर लूप यूज करके वो डायरेक्टली फंक्शन नहीं उसके लिए. रिगार्डिंग स्ट्रिंग के बीच में स्पेस. जनरली कैसे होता है, नॉर्मली हम सी प्रोग्रामिंग देखें या C++ देखेंगे, that this much of functions are not given in that specific. This is the advantage of Python actually. Python में आप वहां पे देखो, आपको कुछ कैरेक्टर वहां पे करना है, स्पेस चेक करना है, लोअर केस या अपर केस, तो आपको वहां पे स्पेसिफिकली कंपेयर करते जाना पड़ेगा.
और स्ट्रिंग को फॉर लूप यूज करके हर एक इटरेशन में वो कंडीशन डाल के चेक करना पड़ता है. डायरेक्ट फंक्शन इज नॉट देयर. यस, बट यहाँ पे लॉट्स ऑफ फंक्शंस आर गिवन इन पाइथन लाइब्रेरी, तो देयर इज नो नीड टू. कई अभी कहाँ पे तो ऑब्वियसली डायरेक्ट फंक्शंस नहीं है, तो वहां पे जैसे कि आपने बोला कि स्ट्रिंग के बीच में स्पेस है कि नहीं वो चेक करना, तो उसके लिए आपको फॉर लूप यूज करके इफ कंडीशन डाल के वो चेक करना पड़ेगा आपको. एम आई क्लियर? यस और नो? Sir, yes. We will move forward. Our next function. I think time is over. Okay, so we will stop here because 10:35 next lecture is there. We will take attendance. So I think all of you understood the functions, inbuilt function that we covered in today's lecture. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you can revise it at your home as a today's homework. For आपको सारे फंक्शन एग्जीक्यूट करके देखने आज, जितने भी आज मैंने करके लिए, all the functions that you have to try at your side. Okay. अभी कुछ I think अभी भी 50% बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगी. End with, then start with, count, find, index, rfind, rindex, center. 10 to 15 function I think remaining. So that we will cover in next lecture. Okay. So give your roll attendance. Roll number 1. Sir, C01 present. Okay. P0 present. Roll number 2. C2 present. Okay. Roll number 3. Roll number 3. C3 present. Okay. Roll number 4. Okay. Roll number 5. Roll number 5. 6. C6 present, sir. 7. And one thing I have to announce, all have to submit your lab assignment from 1 to 6 and theory assignment 1 to 3. लास्ट देयर अभी जिन्होंने सबमिट नहीं है उनको भी डेडलाइन दे रहा हूँ. आफ्टर 10th आई विल नॉट एक्सेप्ट योर असाइनमेंट आफ्टर 10th ऑफ जुलाई. आज कितना तारीख है? 5. एम आई क्लियर? Yes, sir. No? All 6 lab assignment and all 3 theory assignment. 10th is the last date to submit all those assignments. Okay. Roll number 6, 7, B7 absent. Roll number 8. Okay. 9. Present, sir. 10. Okay. 11. Present, sir. C11. Okay. B11. 12. Roll number 12. C12. Roll number 13. B13 present, sir. Okay. 14. Okay. 15. Present, Si- sir. 16. 16. 16. C16 Okay. present. Okay. B16 present. 17. 17. सर 18. सर हेलो हाँ सर हाँ सर B3 प्रेजेंट केलं ना प्रेजेंट yes yes present present. ओके सर थँक यू 19. 20. B20. 21. Sir, B21 present. Okay. 22. 22. 23. 24. C24. Okay. 25. 26. B26. C26. C26 नहीं है 27. Okay. सर B26 प्रेजेंट Okay. 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 हेलो Yes. 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 28. B28 present, sir. Okay. 29. C21 प्रेजेंट 30. 30. 31. B30. B30. 31. 32. C32 present, sir. Okay. Okay. 33. C33 present, sir. 34. सर 32 प्रेजेंट है Yes. 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 34. Present. 35. 36.
37, C37, C37, 38, B38, 39, C39, 40, 41, 42, B42, 43, B43 present, sir. okay, 44, 45, 46, C46, 47, 48, B48 present, sir. okay, 49, 50, C50, 51, C50 present, sir. okay, 51, 52, 53, B53, 54, C54 present, sir. okay, 55, B55, 56 present, 56, C56, 57, C57 present, sir. okay, 58, okay, 59, C59, C60, 61, 61, 62, Present, sir. 63, 64, 65, 66, 67, Yeah, present, sir. 68. Okay. So absent number from C division 37, 39, 46, 56. And from B 5, 7, 11, 20, 30, 38, 42, 47, 53. Sir, 47 present. Okay, B47 present. Okay. B38 present. Okay. Okay. You can join for next lecture. We'll stop here. Thank you. Thank you, sir. Okay.